तो आज की क्लास में we'll be discussing the new additions in your mathematics syllabus, new additions in the CIE 4024 math syllabus and the details of it with examples, inshallah. So moving on, the first topic which we'll be discussing today is rationalization, rationalization and the rules of surds and the definition of surd. So व्हाट आर सर्ड्स? ठीक है, सर्ड्स किसको कहते हैं? तो सर्ड्स जो है ना, किसी भी ऐसे स्क्वायर रूट नंबर को कहा जाता है जिसके साथ स्क्वायर रूट हो. अ स्क्वायर रूट नंबर, अ स्क्वायर रूट नंबर ऑफ विच we cannot take the square root of. For example, if I take a number square root of 36, 30, because 36 is a square number, तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास मेरी वैल्यू आएगी 6. हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 36 is not assert. ठीक है, we won't call it assert. But if we have a number square root of 40, for example, now 40 is not a perfect square because it's not a perfect square. Hence, we cannot take the square root of 40. So we will call this assert. अब ऐसे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, इनको सर्ड कहते हैं. अब एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा हुआ है, आपने एग्जाम में करना क्या है, क्वेश्चन किस तरह का आएगा इससे रेलेवेंट, वो ये आएगा कि यू लर्न हाउ टू सिंप्लीफाई a surd or how to change its form. फॉर एग्जाम्पल, आपको सवाल आ सकता है कि जी स्क्वायर रूट ऑफ 48 लिखा हुआ है and the examiner says that converted into p square root q form where p and q are both integers, where p and q are both integers. What we'll do is, step number one is to divide 48, to break down 48 with the ladder method, जिसको हम कहते हैं कि आप 48 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग द लैडर मेथड. तो 48 की लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 48 विल बी डिवाइडेड बाय 2 और हाफ करेंगे तो 24 आ जाएगा. 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाएगा. 12 डिवाइडेड बाय 2 6. 6 divided by 2 is 3, and then 3 times 1. That's it. जब आपके पास 1 आ जाता है, so you have to stop over there. So 48, instead of writing 48 inside the square root, मैं square root के अंदर 48 को उसके products के तौर पे लिखूंगा. तो 48 is 2 times 2 times 2 times 2 times 3. Now what I'll do is I'll make the pairs. जिसके pairs बन रहे हैं I'll circle them. तो मेरे पास एक 2 का ये pair बन रहा है. So yeah, I'll draw a square around it. एक और pair बन रहा है, I'll draw a square around it. And this 3 is alone. There's no pair of 3. So I'll leave this as it is. जिसका pair बनेगा I'll take it out of the square root. तो each pair will be representing one number. तो ये 2 का pair है तो I'll add on 2 outside. यहाँ से भी 2 आ जाएगा बाहर. ठीक है, और देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन इन बिटवीन. सही है, और जिसका पेयर नहीं बनेगा दैट विल बी लेफ्ट इनसाइड द स्क्वायर रूट. हेंस 2 times 2 is 4 and inside the square root is 3. So square root of 48 written as p square root q form is 4 square root 3. ठीक है, तो I can just simplify it. Square root of 48 in the form p square root q is 4 square root of 3. ठीक है, तो the basic method to convert any surd into this form is कि step one is कि आप उसकी prime factorization करें. Then step two is कि आप उसको square root के अंदर लिख के उसके pairs बनाएं. जिनके pairs बनते जाएंगे वो बाहर आता जाएगा, जिसका नहीं बनेगा that will remain inside the square root. And that's all. We'll obtain the simplified
सर्ड फॉर्म या फिर पी स्क्वायर रूट क्यूब फॉर्म। ठीक है, अब इसको एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे करेगा? एग्जामिनर आपको जो है ना वो दो इस तरह के आपको सर्ड दे देगा। लेट्स सपोज ही गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 48। ठीक है, प्लस ही गिव यू लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो नहीं, हम ले लेते हैं 16 टाइम्स 32 ले लेते हैं इसको। Let's take this question. ठीक है, and the examiner says that give the answer for this question in again p square root cube form or m square root n या a square root b, कोई भी लेटर्स यूज हो सकते हैं, लेकिन एक इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर बाहर होगा, एक नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो फॉर दिस अगेन स्टेप नंबर वन इज टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम सेपरेटली इन दिस फॉर्म। पहले आपने दोनों को सेपरेटली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 converted to this form will give us the answer 4 square root 3, which we've already done over here in the last part. अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 32 आ गया, इसको अब हम दोबारा से करते हैं फॉर प्रैक्टिस। ऑन द राइट हैंड साइड आई अगेन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। आई डिवाइड दिस बाय 2। 2 times 1 is 2 and 1 is left over here and right over here। 2 times 6 is 12, then 2 times 8 is 16, then 2 times 4 is 8, then 2 times 2 is 4, and 2 times 1 is that's it। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, ओके सो नाउ लेट्स राइट डाउन। तो 32 जो है वो क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एंड टाइम्स 2। टोटल कितने हैं? 5 है। लेट्स मेक पेयर्स। आई हैव अ पेयर ऑफ 2। one pair of 2 is over here, the other pair of 2 is over here, and this 2 is left alone if there's no pair of 2। तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा इधर, यहां से 2 बाहर आ जाएगा इधर, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर आ जाएगा। मेरा आंसर आ रहा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनसाइड। ठीक है, so square root of 32 written in the simplest form p square root q form is 4 square root 2। now what will happen? यहाँ पे मैं आप लोग को एक बेसिक सी चीज समझाना चाह रहा था जो कि सामने आई है कि what we'll do is to add any two surds, to add them, the first and most important rule is कि दोनों के अंदर की जो वैल्यूज हैं दैट मस्ट बी सेम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2। बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट सेम तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो द आंसर इज फाइनल, दिस इज योर फाइनल आंसर, यू कैन नॉट फर्दर ऐड इट। यस, अगर हम लोग हमें एग्जामिनर ने एक ऐसा नंबर दिया होता है यहाँ पे जिसको हम सर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाता है लेट्स सपोज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेट्स सपोज। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड करना तो now in this case I can add them because both the square roots have the same number, which means I can add the coefficients। I can add 4 and 5। my answer would be 9 square root of 3। कैसे? अब इसको आपने समझना कैसे? इसको आपने ऐसे समझना है कि अगर स्क्वायर रूट नंबर डिफरेंट है इन दिस एग्जांपल, जैसे जहां पे था 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, इन दिस एग्जांपल दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल। दिस इज ये ऐसे ही जैसे मैं लिखूं 4x प्लस 4y, आई कैन नॉट ऐड 4x एंड 4y, दिस इज माई फाइनल आंसर। लेकिन अगर मेरे पास एग्जांपल होती है दूसरी वाली जो मैंने आपको दी, जिसमें आपके पास 4 स्क्वायर रूट 3 आ रहा था प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 आ रहा था, in this case both the square roots are same which mean the variables are same। तो एग्जांपल ऐसी है जैसे 4x प्लस 5x लिखा हो, तो 4x प्लस 5x हम कर सकते हैं जिसका आंसर आता है 9x। इसलिए मेरा आंसर आया 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया? तो ये आपका जो है वो सर्ड्स को कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। देयर आर सम बेसिक रूल्स रिलेटेड टू सर्ड्स। बेसिक रूल्स रिलेटेड टू सर्ड्स अभी अपने पास नोट डाउन कर लें। सबसे पहला एडिशन का रूल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एडिशन रूल। उसमें यही है कि रूल इज दैट द नंबर द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट the number inside the square root must be
सेम, सही है। टू ऐड एनी टू या थ्री या चार और पांच जितने भी सर्ड्स हैं उनको ऐड करने के लिए उनके इनसाइड नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल जब भी हमने ऊपर किया, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 स्क्वायर रूट। I can add them because the number inside the square root is same. 2 over here, 2 over here. So 3 plus 9. Add कैसे करना है? कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अंदर लिखा होता 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2, now in this case both of them are different. Different का मतलब है you cannot add the coefficients. So this is your final answer, 3 square root 3 plus 9 square root 2. You cannot further simplify it, add it or whatever. कुछ नहीं कर सकते आप इसके साथ, that's all. ठीक है, ये addition और subtraction दोनों का similar rule है। Addition and subtraction, both of them have the same rule. So moving on to the next part, which is multiplication. The rule related to multiplication and division. Multiplication and division. एक सेकंड। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल ये है कि इफ I multiply, let's suppose, square root of 3 times square root of 2. Now what will happen? Because both of them are square root numbers, so what will happen? I can multiply the integers inside. So 3 times 2 is 6 and I'll put a square root over it once. आपका आंसर आ जाएगा square root of 6. Similarly, another example, let's take another example. If I have a constant number 3 and I have to multiply it with the third, let's suppose 5. अब ये 3 जो है इस 5 के साथ multiply नहीं हो सकता because there is no square root around it. So the 3 will become the coefficient and it will be attached along with the square root 5 sign. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 square root 5. Similarly, let's take another example. If we have a constant with a square root number times another constant with another square root number, what will happen? In this case, we can multiply both the coefficients together to get 12, and we can multiply both the square root numbers together to get square root of 10. तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हुए आपस में तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन गया हो, क्योंकि 2 टाइम्स 5 इज 10, और 3 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो आपका आंसर आ गया 12। सही है। So these are the different examples of multiplying a third. इसी तरह division के भी कुछ examples हम देख लेते हैं। For example, let's suppose यहाँ पे मैं division की heading देता हूँ and let's take an example. I'm dividing square root of 6 with square root of 2, let's suppose. And what can happen is कि because क्योंकि square root numbers आपस में multiply हो सकते हैं तो multiplication division दोनों के लिए rule same है, तो divide भी हो सकते हैं अगर दोनों square roots हैं। So what I can do is I can do 6 divided by 2 and then put a square root outside. 6 divided by 2 is 3. So my final answer can be square root of 3. ठीक हो गया। Similarly, what I can do is another concept is कि अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ किसी स्क्वायर रूट नंबर के साथ, लेट्स सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो इसको बच्चे कभी कभार कंफ्यूज ही करते हैं कि 5 और 10 को आपस में डिवाइड करके जो है ना वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख के आ जाएंगे, हालांकि ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग बिकॉज 5 is not a third, hence you cannot divide it. There's no square root around it, but there's a square root around 10. तो आप इसको divide नहीं कर सकते. This is your final answer, 5 over square root 10. हाँ, अगर क्वेश्चन में आता है कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, we look at it once we're done with the rules of division. अभी हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये आपका जो है वो रूल था। तीसरा ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर आता है 25 square root of 16, so square root of 18, let's suppose divided by square root of 2, let's suppose, and the examiner says कि जी simplify करें इसको, देखें क्या बनता है इसका। तो what I can see is कि मैं 25 और 5 को I can simplify it by simply cutting it. 5 times 1 is 5, 5 times 5 is 25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5।
और स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, दोनों के साथ स्क्वायर रूट है, तो आई कैन पुट स्क्वायर रूट वंस एंड डिवाइड द वैल्यूज इनसाइड टू गेट द आंसर टू बी 9। मेरा आंसर आया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9। और अगर मैं गौर करूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि यार स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, so 5 times 3 is equal to 15. So this was the question, but this was the final simplified answer for this. So these were some basic rules of search which you must know, and these rules may help in solving the rationalization parts questions as well. तो rationalization वाले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है जी, एग्जाम्पल पे आते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है पहले ये समझिए। व्हाट डज टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर का मतलब है क्या? सही है। तो रैशनलाइज मींस rationalize means to remove surds from denominator। डिनोमिनेटर में से आपने सर्ड वाला पार्ट रिमूव करने को रैशनलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सवाल आता है कि जी 3/√5 लिखा हुआ है एंड आई वांट टू रिमूव दिस सर्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो that means to rationalize it. So how to rationalize it? So the basic rule for rationalization is whatever is in the denominator, multiply and divide with it. Multiply and divide with it. So denominator में square root of 5 था, मैंने उससे multiply भी कर दिया, divide भी कर दिया। Now what happens? Simply multiply the numerators, multiply the numerators. So 3 times square root of 5, according to the rules we studied above, is 3 square root 5. And in the denominator, जब दो स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कराएं उनके नंबर्स को, आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5 times 5 25 होता है, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। 3 square root 5 divided by 5 is your answer. Because square root of 25, because 25 is a square number, उसका square root क्या होता है 5। तो अब आपका जो है वो सिंपलेस्ट आंसर आ गया। ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म थी, मैंने जब इसको रैशनलाइज किया इसके डिनोमिनेटर को, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 5 खत्म हो गया। और हमारे पास अब जो रैशनलाइज फॉर्म आई है उसमें से डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट खत्म हो चुका हुआ है। हाँ अलबत्ता न्यूमरेटर में जरूर आ गए, बट क्योंकि हमने we had to rationalize the denominator, we have done our part. This is called rationalization. Now, rationalization questions can come in different ways. For example, आपको एग्जाम में थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए ऊपर जो है वो 2 square root of 3 plus 5 divided by, let's suppose, 5 minus square root of 2. And the question says rationalize the denominator. So the rules are same. Rationalize the denominator. So the rules are same कि आपने मल्टीप्लाई करना है विद द डिनोमिनेटर, सही है, वट एवर इट इज। तो 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो साइन होगा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में उसका ऑपोजिट साइन। दिस इज माइनस ओवर हियर, देन वी राइट डाउन 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 divided by 5 plus square root of, because there was a minus over here because of that. तो अब स्टेप नंबर 1 हमने कर दिया कि we multiplied and divided it with the denominator but with this different sign. Now step number 2 is what you have to do is simply multiply the numerators and multiply the denominators. तो अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका यही है कि हम एक एक करके पिक करते हैं। लेट्स पिक द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। हाँ put always put a bracket over here and a bracket over. We'll pick the first element and multiply this with 5. So 2 square root of 3 times 5. This was your first multiplication. Then again we multiply this with the second element of the other bracket. 2 square root 3 की बात हो रही है. Put a plus sign over here because there is a plus over here. And then 2 square root of 3 times square root of 2. सही है। ये आपने अभी 2 square root of 3 मल्टीप्लाई किया अगली ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह आपने फिर 5 को पिक करके अगली ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन मैं इनके मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिखता हूँ। तो पहले का आंसर आपका आ रहा है जी 2 times 5 is 10, स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसके साथ आ जाएगा। एंड देन 2 times स्क्वायर रूट ऑफ 3 times स्क्वायर रूट ऑफ 2 is स्क्वायर रूट ऑफ 6 और 2 उसके साथ आ जाएगा, 2 square root 6 plus 5 times 5 is 25, and then 5 times square root of 2 is plus 5 square root 2. And we'll divide this with the denominator, the product of denominator. Always remember in the denominator, you'll have a minus b over here and you'll have a plus b over here, and it can be vice versa.
ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन व्हाट इज कांस्टेंट? द थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलवेज अप्लाई द थर्ड आइडेंटिटी इन द डिनोमिनेटर। सिंपल तरीका उसका ये होता है कि यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, आपने उसको इग्नोर रखना है, आपने हमेशा माइनस लगाना है, क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी में हमेशा माइनस आता है। बस आपने ये देखना है कि मेरा ए क्या है, बी क्या है। तो जो पहला नंबर होता है दैट इज ए, और जो दूसरा नंबर होता है दैट इज बी। इफ यू लुक एट फ्रॉम द अदर ब्रैकेट एज वेल इन द डिनोमिनेटर, द फर्स्ट एलिमेंट इज ए एंड द सेकंड एलिमेंट इज बी। तो ए इज 5, to square with it, put a minus sign, close your eyes and put a minus sign always. And b is this. Now write down b, square root of 2b आपका, and then put a square on top. ठीक है? अच्छा, in the numerator I can see that this square root number is different, this is different, and this is different, and this is a number without any square roots, so I cannot add any of these. सही है, तो ये इनमें से कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, ये मेरा सिंपलेस्ट आंसर है, इसको मैं फर्दर ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। न्यूमरेटर में हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 5 का स्क्वायर लेके इसको 25 बना सकता हूँ, माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा, so this square will cancel the square root sign, then 25 minus 2 is 23। तो मेरा डिनोमिनेटर का फाइनल आंसर आ रहा है 23, और मेरा न्यूमरेटर इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस प्लस 2 square root of 6 plus 25 plus 5 square root of 2. That's it. So this is my final answer, in which I have removed the third वाला part from the remark. मैंने third को हटा दिया डिनोमिनेटर से, जिसकी वजह से हुआ क्या कि ये मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी ये रैशनलाइज हो गई। डिनोमिनेटर जो था इसका वो रैशनलाइज हो गया है। So this is how you have to do the rationalization वाला part. Okay, so now let's move on to the next new addition in the syllabus, जो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, ये जिसमें हमें स्केचिंग ऑफ द ग्राफ आ सकती है। स्केचिंग ऑफ लाइन इक्वेशंस, स्केचिंग ऑफ लाइन इक्वेशंस। नंबर टू, स्केचिंग ऑफ आपका क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इनको रैशनल इक्वेशंस भी कहते हैं, बट टू मेक इट इजी आई एम राइटिंग डाउन रेसिप्रोकल इक्वेशंस। स्केचिंग ऑफ quadratic equations, quadratic equations, and identifying or sketching the cubic equations, बेसिक ones। ठीक है ना, जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं, और फिर इन इक्वेशंस में से जो रेलेवेंट है उनकी एसिम्प्टोट की कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? So how to sketch a line equation. चलिए, अब इसका सवाल कैसे आएगा? सवाल, क्वेश्चन विल बी,
So, how to sketch a line equation? The question for line equation will be something like this. आपको एग्जामिनर एक ग्राफ देगा, ठीक है, और एम्प्टी ग्राफ होगा बिल्कुल, बस सिंपली वाई एक्सिस और एक्स वाई और एक्स शायद ही लिखा हो, वो भी आपको लिख ही सकते हो, ऑब्वियसली बात है, आप लोग इतना तो पता ही है। तो वाई और एक्स आपको गिवन है। नाउ यू विल बी गिवन इन लाइन इक्वेशन समथिंग like this. Let's suppose y is equal to minus x and plus 2, let's suppose. And the question says that sketch the line on this graph. Now, whatever the line equation किसको कहते हैं? The general form of line equation is y is equal to mx plus c. अब ये इस तरफ हुआ हो या इधर हुआ हो, आपको पता होना चाहिए कि x के साथ जो नंबर होता है, that is the gradient. The coefficient of x is the gradient of any line. हाँ, शर्त यह है कि y has to be the subject. सही है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y has to be the subject. और c is the y intercept, the very point where the line cuts the y axis, that is the value of c. So ये दो चीजें तो हम लोग by simply just looking at the line equation हम लोग find out कर सकते हैं. Because y is the subject over here, I can see that the coefficient of x is -1. So my gradient is -1 and the constant value along it is 2. So the value of c is 2, which means कि जो मेरी लाइन है वो, अगर मैं लेट सपोज 2 यहाँ पे खुद से प्लॉट कर देता हूँ, मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स लगा देता हूँ रेलेवेंट से, तो यहाँ से मेरी लाइन कट करके गुजर रही है. दिस इज व्हाट आई नो. And the other thing is कि my gradient is -1, which means the line is coming downwards. लेफ्ट से राइट पे देखा, लेफ्ट टू राइट देखा जाए तो मेरी लाइन नीचे आ रही होगी, यानी कि मेरी लाइन ऐसे करके गुजर रही होगी. तो अब जरूरी नहीं है कि आप स्लोप जैसी तैसी बना लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपने बस इंटरसेप्ट सही लगाने. Because I know my line has a gradient of negative, it's coming downwards and it's cutting the y-axis at 2, so I'll draw a straight line cutting the y-axis at 2. The point is, how would I know कि ये point कौन सा है? X-axis पे मेरी line कहाँ पे कट कह रही है? So to find out the coordinate at x-axis, put y equal to 0 in the. If I put y equals to 0, या y की जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये बनता है -x+2. Now I'll take x on the left hand side. This will become x is equal to 2. So this point is 2. That's all. You just have to label the axis. Just label the axis. Y-intercept, you can look from the equation. For x-intercept, put y equals to 0. You'll get both the points and simply join them and you'll get the line drawn. That's all. ठीक है ना? इसके अलावा और नहीं, और कुछ भी नहीं करना है. इसका आपको या 1 मार्क मिलेगा, और अगर ज्यादा एग्जामिनर ने आप पे तरस खा लिया तो 2 मार्क, 2 मार्क का सवाल देगा. नॉर्मली लाइन इक्वेशन की स्केचिंग जो है, दैट इज फॉर 1 मार्क्स ओनली. Whatever the line equation is, just plot the y-intercept, just find out the x-intercept, join both of them, you'll get your line drawn. That's it. तो ये दो चीजें आप शॉर्टकट याद रखने हैं, y-intercept एंड x-intercept. y-intercept आपको लाइन इक्वेशन से नजर आ जाएगा. x-intercept के लिए आपने y इक्वल टू 0 पुट कर देना है, जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर y-intercept. like in this part x is equal to 2 was your x-intercept. Just join both the points and just extend the line and आपकी लाइन इक्वेशन कंप्लीट. ठीक हो गया. अब अगला पार्ट आता है आपका रेसिप्रोकल ग्राफ्स का. ठीक है, जिनको हम रैशनल भी कहते हैं या रेसिप्रोकल भी कहते हैं. The reciprocal graphs, how to sketch them. ठीक है, ये आपका, क्योंकि this is new edition, you must know how to sketch them. So starting with the most basic graph of y is equal to 1 over x. So आपका जो x है that is in the denominator. अब let's suppose you have a graph in front of you. सही है, और आपने, अगरचे हो सकता है आपने मेरी ये वीडियो ना देखी होती है, आपने वैसे ही इसको ना समझा होता कभी पूरी सेशन में, और मैथ के पेपर में आ जाता, तो हाउ वुड यू सॉल्व इट? ठीक है ना. आप क्या करते हैं, हमेशा याद रखें, आपको दो चीजें चाहिए होती हैं. आपको चाहिए होता है वाई इंटरसेप्ट सबसे पहले, और दूसरी चीज के रेसिप्रोकल ग्राफ्स की क्या नेचर होती है. सही है, ये दो चीजें आपको पता होंगी तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने एक्स की जगह हमेशा 0 पुट करना होता है, और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने हमेशा क्या करना होता है, y की जगह 0 पुट. So let's see what is the y-intercept of my graph. So by putting x is equal to 0 in the equation, what I will see is कि 1 over 0 आ रहा है, and any number divided by 0 gives you infinite.
which means that the y-axis is such a line that your graph never touches. तो मेरा ग्राफ कभी भी y-axis को टच करने ही नहीं वाला. Similarly, जब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा over here in the place of y, 0 is equal to 1 over x. And I'll take x over there and I'll bring 0 in the place of x. X is equal to 1 over 0, which is equal to infinite. उसका भी आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, जिसका मतलब है कि मेरा x एक्सिस भी ऐसी लाइन है कि मेरा ग्राफ उसको कभी अप्रोच करेगा ही नहीं. तो आप याद रखें कि 1 ओवर x के ग्राफ्स हमेशा इस तरह के दिखेंगे. आपको एक रोलर कोस्टर स्लाइड नजर आएगी जो y से स्टार्ट हो रही होगी और x तक जा रही होगी, लेकिन कभी भी वो एक्सेस को अप्रोच नहीं करेगी. नेवर अप्रोचेस द एक्सेस. एंड इफ वी गो इन द नेगेटिव पार्ट, तो वो सेम चीज आपने इसकी मिरर इमेज बना देनी इन द ऑपोजिट एक्सिस. तो जिस क्वाड्रेंट में अभी हम हैं क्वाड 1 में, तो इसका ऑपोजिट होता है क्वाड 3. तो आपने इसमें एग्जैक्टली यही सेम चीज ड्रॉ कर. ठीक है. So this graph represents the y equals to 1 over x line, the reciprocal line. अब ये आपका y equals to a over x बन जाए. सही है, मतलब a की जगह कोई भी नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए. इन आइदर केस सिनेरियो आपका ग्राफ ऐसा ही बनना है. एंड फॉर ऑल रेसिप्रोकल ग्राफ्स जिनके पास आगे y इंटरसेप्ट नहीं होता, यानी कि इसके आगे मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, कोई नंबर नहीं लिखा होता, my y intercept, the value of my c was 0. तो जनरल रूल ये होता है कि if the value of the c is 0, the equation of the asymptotes of all reciprocal graphs will be x is equal to 0 and y equals to 0. यानी कि the y-axis and your x-axis will be the asymptote. साथ साथ मैं आपको बताते चलो asymptotes होते क्या हैं. asymptote एक ऐसी लाइन होती है, इसको आप याद रख लें, a dotted line, जो हम हमेशा जैसे मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बनाई, अ डॉटेड लाइन और एनी लाइन which your graph tries to approach but never touches, which means कि ये जो लाइन है, मेरा ग्राफ ये है. सही है, मेरा ग्राफ आगे तक भी मैं अगर इसको ड्रॉ करता रहूं, इट विल नेवर एवर टच एक्स एक्सिस. सिमिलरली फ्रॉम हियर मैं इसको जितना ऊपर ले जाऊं, इट विल नेवर एवर टच वाई एक्सिस. इट विल गेट पैरेलल टू इट बट इट विल नेवर टच इट. हेंस वाई एक्सिस मेरी वो डॉटेड लाइन है और एक्स एक्सिस मेरी वो डॉटेड लाइन है इन 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 द केस ऑफ दीज ग्राफ. एक आप अपने पास जनरल फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लो, जनरल फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल ग्राफ्स. तो जनरल इक्वेशन होती है रेसिप्रोकल ग्राफ्स की, y इक्वल्स a ओवर x प्लस c. अगर ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए, सही है, y इक्वल्स a ओवर x प्लस c, तो आपकी इक्वेशन जो है वो ऑफ द एसिम्पटोट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इज ऑलवेज इक्वल टू, बल्कि अभी आप इनको इसको यहाँ से सी को भूल जाए, इसको भी मैं आपको अगले में डिटेल में समझाता हूँ. सिर्फ आप इतना याद रख लें कि y इक्वल्स टू a ओवर x जो है रेसिप्रोकल ग्राफ से, उनका ग्राफ बनता है इस तरह का. उनकी एसिम्पटोट की इक्वेशन हमेशा होती है x एक्सेस और y एक्सेस. ठीक है. अभी इनको फर्दर हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या चेंजेस आ सकती है, उनके हिसाब से एसिम्पटोट क्या चेंज होगा. बस जस्ट फॉर दिस पार्ट जस्ट रिमेंबर दिस के आपकी ये जो है वो एसिम्पटोट की इक्वेशंस होंगी फॉर रेसिप्रोकल ग्राफ्स. ठीक है. अच्छा, अब व्हाट चेंजेस यू कैन फेस. तो एग्जामिनर क्या चेंजेस ला सकते हैं. एग्जामिनर बजाय इसके कि आपको 1 ओवर x दे, वो आपको y इक्वल्स टू नेगेटिव 1 ओवर x का ग्राफ भी दे सकता है. इफ आई ड्रॉ दिस ग्राफ इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, ये मेरा y एक्सिस मैंने लेवल किया, इसको मैंने x एक्सिस लेवल किया, और इक्वेशन आ गई है नेगेटिव 1 ओवर x. ठीक है. अब नेगेटिव 1 ओवर x में क्या होगा, पहले क्या था, पहले मेरी दो लाइन थी, जब नेगेटिव नहीं था तो वो इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में बन गई. ठीक है. जस्ट रिमेंबर कि जो y इक्वल्स टू 1 ओवर x का ग्राफ था, अब क्योंकि माइनस आ गया, तो आपने इसको बनाना है इन दी ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स. ठीक है. बिकॉज इन द लास्ट ग्राफ क्वाड्रेंट्स वर Q1 एंड Q3, तो अब आपका ग्राफ बनेगा ऐसे करके यहाँ पे in the second quadrant and in the quadrant opposite to it, which is the fourth one. सही है. तो this is the graph where y equals to negative 1 over x. एसिम्पटोट की इक्वेशंस इसकी याद रख लें आप लोग. इसकी एसिम्पटोट की इक्वेशंस वही है, x एक्सिस है और y एक्सिस. x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y equals to 0. x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की क्या होती है, x equals to 0.
So these are the this y equals to 0 x-axis is your horizontal asymptote. इनको अभी हम डिटेल में देखते हैं अलग से। और ये है आपका वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ऐसी लाइन जिसको कभी ग्राफ मेरा टच नहीं करेगा। और ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको मेरा ग्राफ कभी अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, टू द जनरल पार्ट। अब जनरल पार्ट आप नोट डाउन कर लें कि अगर आपकी आती है रेसिप्रोकल इक्वेशन y इक्वल्स टू a ओवर x, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ऊपर पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो आपका ग्राफ कैसे बन रहा है? आपका ग्राफ बन रहा है ऐसे और ऐसे। और अगर मैं इसको रेड में ड्रॉ करता हूँ, आपका आता है जी वेयर वेयर ए इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो आपकी यही चेंजेस बन जाएंगी, यही ग्राफ आपका इधर और इधर बन, सही है। तो फॉर रेड लाइन ये ए लेस देन 0 का ग्राफ है फॉर रेड लाइन, और ये आपका ए ग्रेटर देन 0, सही है। अच्छा, सिमिलरली जो सेकंड मैंने हमने चीज डिस्कस करनी थी वो है आपका ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल विद स्क्वायर, y equals to 1 over x square का ग्राफ। if I have a graph in front of me if I have a graph in front of me, ठीक है, और अगर ये ग्राफ जो है वो आपका ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये ग्राफ, इस ग्राफ की वो कैसे होगा, y equals to 1 over x square है, ठीक है। तो फॉर ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, यानी कि फॉर दिस पार्ट, this graph is exactly identical to 1 over x. But for all the negative values of x, क्योंकि जब मैं x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करता जाऊंगा, फिर भी ये स्क्वायर की वजह से मेरे आंसर्स को पॉजिटिव करता जाएगा। तो इस केस में मेरे क्वाड्रेंट, मेरा ग्राफ यहाँ पे बनता था और इस क्वाड्रेंट में बनता था नेगेटिव में। लेकिन स्क्वायर की वजह से जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा, और ये मेरे दोनों ऊपर वाले, ये वाला जो पार्ट था ये शिफ्ट होकर ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, so the graph of y equals to 1 over x square looks like this, and the vertical asymptote and the horizontal asymptote for this case is again same x equals to 0, y equals to, जितनी भी रेसिप्रोकल ग्राफ्स हैं सबके यही आपके asymptotes। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जरूरी चीज ये है कि अगर मैं इसका कोफिशिएंट नेगेटिव करूं तो फिर क्या चेंजेस है। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट को चेंज करने से आपके क्वाड्रेंट्स ऑपोजिट हो जाते हैं। मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ कि इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -1 ओवर x स्क्वायर, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो दोनों ऊपर बन रहे थे अब ये दोनों के दोनों रिवर्स होकर नीचे बन गए। सो this is the graph of y is equal to -1 over x square, and this is the graph of y equals to 1 over x square. So the general formula क्या बना? y equals to a over x square ये है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपकी ये जो ब्लैक लाइन है ये बनेगी, और अगर a लेस देन 0 है यानी कि ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपकी जो रेड वाला ग्राफ है ये वाला ग्राफ, ठीक है। ब्लैक वाला ग्राफ फॉर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए, रेड वाला ग्राफ फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ए, हो गया। अच्छा, इसी तरह इफ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इसको हम करते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल ऑफ एसिम्पटोट्स, मैं आपको पहले क्यूबिक ग्राफ का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि अगर ग्राफ आता है y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब की शक्ल, ठीक है, इस इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये ग्राफ कैसा दिखेगा। लेट सपोज मेरा जो है वो y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो क्यूबिक का मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको विल सी टू कर्व्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब जो है आपका वो ग्राफ, याद रखना आपने सेंटर से स्टार्ट होगा, बिकॉज आई हैव नो सी ओवर हियर, तो y इंटरसेप्ट इज, so it will be going upwards from here and it will be going downwards from here। ये एक एस शेप बनता है हमेशा इसका, एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राफ इफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव बन जाता है फिर क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब इस केस में ये सी का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन y इज इक्वल टू एन इक्वेशन, एग्जाम्पल लेते हैं 2x क्यूब प्लस 2, लेट्स सपोज
ठीक है, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि मुझे एक्स क्यूब नजर आ रहा है, तो मुझे पता है कि एक एक एस शेप बनना है। प्लस टू पार्ट नहीं होता, अगर इन केस प्लस टू पार्ट नहीं होता तो मेरा द ग्राफ वुड हैव लुक्ड समथिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, सही है। बट और वो जीरो से गुजरा, बट बिकॉज आई हैव प्लस टू ओवर हियर, मेरा सी जो है वाई इंटरसेप्ट जो है वो टू है, तो मैं यहाँ पे इसको टू को लेबल करता हूँ। ये जो मेरा ग्राफ मैंने बनाया है इन दिस ग्राफ, what will happen, this graph will move two steps upwards, and instead of cutting from zero, the graph will be starting from here and then going to two, going back upwards like this. So this is the only difference. So this graph is representing y is equal to 2x cubed plus 2. The black line over here is representing y is equal to ax cubed general form, and the red line over here is representing y equals to 2x cubed only. सही है, तो ये 2x क्यूब अकेला है, इसमें जब प्लस टू आ जाएगा तो सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, ये आइडेंटिकल ऐसी ही कर्व सेम होगी, बस ये दो स्टेप्स ऊपर चला, तो आपको ग्राफ्स आएंगे मैचिंग के लिए सवाल आ सकता है कि आइडेंटिफाई करें कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का है, तो यू कैन सिंपली बाय नोइंग दीज टर्म्स, नोइंग दीज ट्रिक्स, क्यूबिक क्यूब है तो क्या होगा, प्लस आगे कोई नंबर आएगा तो क्या होगा, तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर अदर अदर वे अराउंड, ए लेस देन जीरो हो गया, वाई इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव ए एक्स क्यूब लिखते हैं और आगे लिख लेते हैं ए इज लेस देन, सही है। What will happen is if I have a graph over here, सही है, अब क्या होगा, पहले क्या था, पहले था आपका ग्राफ ऐसे करके जा रहा था और ऐसे करके, अब व्हाट विल हैपन इज इसका रिवर्स हो जाएगा, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज ऐसे करके इधर आ जाएगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ दिस पार्ट, ठीक है, और ये मेरा जो है वो बन गया है ग्राफ which is crossing from the origin and going back downwards. This is my y-axis and this is my x-axis. ठीक हो गया, तो example of this graph is y is equal to, let's suppose, minus 3x cubed, y equals to minus 3x cubed, minus 3x cubed. Or again, if I write down minus 1 with it, let's suppose y is equal to minus 3x cube minus 1. तो ओरिजिनली जो माइनस थ्री एक्स क्यूब का ग्राफ था, सही है ना, ये वाला, व्हाट विल हैपन, ये माइनस वन पे चला जाएगा, इंस्टेड ऑफ पासिंग फ्रॉम जीरो इट विल बी पासिंग फ्रॉम नेगेटिव वन, यही सेम ग्राफ विल बी पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो वट एवर द वैल्यू ओवर हियर इज, वट एवर द वैल्यू ऑफ सी इज, दैट टेल्स अस दैट द ग्राफ इज कटिंग फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट, ये अगर है ही नहीं तो फिर जीरो से अगर कोई भी वैल्यू है तो वो माइनस वन है, प्लस है, जो भी है वहां से ग्राफ उतरेगा। नेगेटिव से मुझे ये पता लग रहा है कि ग्राफ मेरा लेफ्ट साइड से देखूंगा तो ऊपर से नीचे आ रहा है, और अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि मेरा ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तो ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अ, अ, इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ तो अवॉइड कंफ्यूजन, नंबर हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं जरा आपको असिम्प्टोट को अलग से समझाता हूँ, तो थोड़ा डिटेल में करते हैं कि असिम्प्टोट के कॉन्सेप्ट को। असिम्प्टोट, so I already told you कि it's a line, either it can be a vertical or it can be a horizontal line, जिसको आपका ग्राफ कभी भी टच नहीं कर सकेगा, अप्रोच कर लेगा टच नहीं कर सकेगा, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लेट्स सपोज एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ की है और मेरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ में लेता हूँ कि लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस, ठीक है, and let's try to sketch this graph, let's see what happens if I
draw this graph over here. Let's see what happens. Let's see what happens. अच्छा जी. Let's take some values of x. X is equal to 0 check करते हैं. X is equal to -2 check करते हैं. X is equal to +2 पे देखते हैं क्या आंसर आता है. X is equal to 5 पे देखते हैं क्या आंसर आता है. और X is equal to -10 पे देखते हैं क्या आंसर. So let's put X is equal to 0 in the equation. If I put 0 over here, मेरी y की वैल्यू कैसे आएगी? 2 to the power 0 plus 1. So 2 to the power 0 is 1. Y equals 1 plus 1. मेरा आंसर आ रहा है 2. So at x is equal to 0, the value of y is 2. So yeah, this is my first coordinate. अगला मैंने चेक करना है at x is equal to -2. x की जगह पे जब मैं -2 पुट करूंगा तो this will become y is equal to 2 to the power -2 plus 1. अच्छा जी, तो y is equal to 2 to the power -2 plus 1. So -2 means reciprocal. आपको indices के laws पता होनी चाहिए. So this becomes y is equal to 1 over 2 square plus 1. Y equals 1 over 4 plus 1. अब देखो जैसे जैसे I'm decreasing the values of x. मैं जैसे जैसे negative values को बढ़ाता जाऊंगा, मतलब मैं -3 -4 along the negative x axis में values बढ़ाता जाऊंगा, the denominator will start to increase as much as कि जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये overall value बहुत छोटी हो जाएगी. सही है. And this value will get closer to 1 but it will never reach 1. ठीक है. Let's suppose मेरी वैल्यू आती है 1 over 4 plus 1, तो ये मेरा आंसर बनता है 1.25. तो -2 पे somewhere over here my answer is around 1.25 which is somewhere over here. और जब मैं आगे ये 2 और 5 वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरी वैल्यू और ऊपर आती है. तो मेरा ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बन रहा है. द ग्राफ इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. इतना डिक्रीज हो रहा है कि वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा. x इज इक्वल टू 1 लाइन के पैरेलल हो जाएगा. सॉरी, y इक्वल्स टू 1 लाइन के पैरेलल हो जाएगा. बट इट विल नेवर अप्रोच 1. व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट इज कि if I look at this part of the equation, y is equal to 2 to the power x plus 1, 1 के equal, this part of the equation can never be equal to 0. अगर ये 0 ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि पूरी इक्वेशन की वैल्यू कभी 1 ही नहीं हो सकती. 1 के बहुत करीब आ जाएगी, 1.00000001 शायद आ जाए, बट इट विल नेवर गेट इक्वल टू 1, which means that the graph, this exponential graph will never approach this value. तो किसी भी exponential graph का याद रखें, किसी भी exponential graph का asymptote हमेशा, ये जनरल रूल है, asymptote हमेशा होगा y is equal to c. And let me give you the general equation. Y equals ax to the power b plus c. ठीक है. इस इक्वेशन, इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाए, उसका जो आपका asymptote की इक्वेशन होगी, that will always be equal to equation of asymptote is always equal to y is equal to c, whatever the value of c is in that case. ठीक हो गया. So in this case the value of c was 1, so the equation of the asymptote is y equals to 1 in this case. ठीक है. इसी तरह दूसरी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस जो आपको सवाल में आनी है, that is y is equal to a over x minus b plus c. In this case आपके पास दो एसिम्टोट्स बनेंगे. एक आपका वर्टिकल एसिम्टोट बनेगा, वर्टिकल एसिम्टोट, और एक आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट. ठीक है. और इन इक्वेशंस में आपने याद रखना है, मैं इसकी आपको वैल्यूज के साथ फॉर्म लिख देता हूँ. y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 3 ओवर x माइनस 1 प्लस 5. लेट्स सपोज ये ग्राफ आ गया आपके पास और यहाँ ब्रैकेट में. ठीक है. Now I want to find out the vertical and the horizontal asymptote. तो vertical asymptote की हमेशा याद रखना इक्वेशन होगी x is equal to whatever it is. सही है.
और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की हमेशा इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इज सिंपल। यहाँ भी जो नंबर लिखा होता है ना, जैसे यहाँ मैंने आपको बी लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू बी इज ऑलवेज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एसिम्पटोट, and y is equal to c is always the equation of the horizontal asymptote in all of these reciprocal equations, reciprocal और रैशनल इक्वेशन। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। क्यों रेसिप्रोकल इक्वेशन है? क्योंकि एक्स इनके डिनोमिनेटर में आ रहा है और उसके साथ यहाँ पे बी, अगर उसके साथ यहाँ पे बी नहीं लिखा होगा तो फिर क्या बन जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, तो y इंटरसेप्ट ही होगा। वर्टिकल एसिम्पटोट आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे बी है ही नहीं तो फिर x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यानी कि इस केस में द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल asymptote is x is equal to 1 and the equation of the horizontal asymptote in this case is y is equal to 5. Similarly अगर आपको एक ग्राफ आता है, उसकी इक्वेशन आती है, अच्छा ये asymptotes बनाते हैं, बना के भी देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज ये आपका ग्राफ है, सही है, आपका हॉरिजॉन्टल asymptote है y इक्वल टू 5, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर देयर, और आपका वर्टिकल asymptote है x इज इक्वल टू 1, वर्टिकल लाइन। दिस मीन्स कि आपका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका जो है वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा और कभी भी इस वर्टिकल लाइन को टच नहीं। समझ आ रही है? जब हम इसको स्केच करेंगे ना ग्राफ पे, आपको ज्यादा क्लियर है। दिस इज योर वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल्स टू 1 पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 1 एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल्स टू 5। इनको निकालने का सिंपल ट्रिक क्या था कि आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, इस डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू जीरो पुट करना। x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल टू 1 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और जो आपके y इंटरसेप्ट की वैल्यू है c, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल, हाँ सॉरी ये वर्टिकल था, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल, y इक्वल्स टू c इज योर हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया? तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दैट कैन बी क्वेश्चन फॉर एसिम्पटोट्स, और आपने इसको याद रखना है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ। स्पेसिमेन पेपर में एक सवाल आया था, उसमें आपको जो है वो ऑलरेडी स्केच्ड ग्राफ गिवन था एंड दैट ग्राफ वाज पासिंग फ्रॉम a certain point from and that was labeled a. The equation of the graph was given y is equal to 3 times 2 to the power x plus 5. Let's suppose, let's assume कि आपकी, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको कौन से टाइप ऑफ इक्वेशन दे दी है, ये आपको दिए मैंने y इज इक्वल टू a x टू द पावर b प्लस c, जो मैंने आपको पहले वाली दी थी, इनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये उसकी, ये उसका एग्जांपल है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू c। तो c मुझे नजर आ रहा है, मैं देख के बता सकता हूँ कि इसके एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी, जो कि बच्चों को उस वक्त पता ही नहीं था कि कैसे करना है। तो इसमें दो सवाल थे। पहला सवाल था कि जी a का कोऑर्डिनेट बताओ। ऑब्वियसली a इज एट y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे है, तो उसके लिए आपने, मैंने आपको बताया था y इंटरसेप्ट के लिए हम x की जगह जीरो पुट करते हैं, तो विल पुट जीरो ओवर हियर, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टू द पावर 0 प्लस 5। सो y इक्वल्स 3 टाइम्स 1 plus 5. So y equals 3 plus 5, y is equal to 8. Hence the coordinate of A is x is 0 because हमने 0 put किया था x की जगह, और मेरा आंसर आया y equals to 8. This coordinate is 0, 8. And the equation of the asymptote of this graph is y is equal to 5. Just close your eyes and give the answer. That's it. ये आपका y intercept sorry, ये मेरी c की वैल्यू मुझे नजर आ रही है। The c is the constant number. So my horizontal asymptote is this. Let's suppose 0, 8 कोऑर्डिनेट यहाँ था, तो 5 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपका asymptote है, जिसको आपका ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, अप्रोच करेगा। और उसका प्रूफ हमें कैसे मिलता है? उसका प्रूफ हमें यहाँ से मिलता है कि ये जो है, किसी, याद रखें, कभी भी एक्सपोनेंट की इक्वेशन कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। तो अगर ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा तो ये वाला फिर आपका ओवरऑल y की वैल्यू कभी भी 5 नहीं आएगी। ये वाला पार्ट या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से जो है वो जीरो से कम भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। दिस पार्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। The value of your exponent will always be greater than zero. It can never be less than zero. आप इसमें x की सारी नेगेटिव वैल्यूज डाल के देख लो, तो ये बन जाएगा 3 over 2 to the power x. This will become for all negative x values. तो आप, अब आपने x की वैल्यू नेगेटिव बना ली तो वो फ्रैक्शन में नीचे आ गया। अब आप इसकी जगह 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक पुट कर दो।
this fraction will get closer to zero, but it will never be equal. Never be equal. ठीक है? और आप इसमें पॉजिटिव वैल्यूज डालते जाओगे तो बड़ा होता जाएगा और ऊपर जाता रहेगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ कभी भी जो है वो 5 से नीचे, यानी कि 5 को भी नहीं टच करेगा और 5 से नीचे भी नहीं जा सकता। दिस ग्राफ इज ऑलवेज अबव 5। ठीक है, तो द कांस्टेंट नंबर अदर देन द एक्सपोनेंट वाला पार्ट इज ऑलवेज द इक्वेशन ऑफ द asymptote फॉर ऑल एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। याद रखना है। अगर आपको लेट सपोज एक इक्वेशन आ जाती है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह, जैसे मैंने आपको ऊपर आपको एक रेसिप्रोकल की एग्जांपल दी, y is equal to लेट सपोज 3 over x minus 1 times x plus 2 plus 3, and I want you to give the vertical and the horizontal asymptote of these equations. So what we can see is कि जी horizontal के लिए मुझे ये c नजर आ रहा है, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा y equals, बट फॉर वर्टिकल मैंने आपको कहा था कि x इज इक्वल टू बी आपकी इक्वेशन होती है अगर एक हो नीचे ब्रैकेट, बट यहाँ पे दो है। तो फॉर दिस पार्ट x इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ द asymptote, एंड फॉर दिस पार्ट x इज इक्वल टू -2 इज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल। सो दीज आर द टू वर्टिकल asymptotes ऑफ दिस ग्राफ। जो भी होगा ग्राफ, हम इक्वेशन ग्राफ देके बगैर बता सकते हैं इक्वेशन से। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल asymptote की, ठीक है। तो आई होप आपको एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। अच्छा जी, और जो न्यू एडिशंस हैं जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके रेट के क्वेश्चंस हैं, उसको जो है ना वो आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आप लेट्स गो। और अच्छा, इसकी तो मैं सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। लास्ट पार्ट हमारा एक इसमें देख लेते हैं, दैट इज स्केचिंग ऑफ quadratic graphs. Sketching of quadratic graphs. Y is equal to ax square plus bx plus c वाले, तो इनकी स्केचिंग कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज वी हैव एन इक्वेशन y is equal to x square minus 5x plus 6, and the examiner wants us to sketch this graph. Question is जी sketch the graph, और आपको लेट सपोज ग्राफ के दोनों एक्सेस भी लेट सपोज जो है वो किसी हद तक गिवन, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड एग्जामिनर वांट्स यू टू स्केच द ग्राफ। अब स्केचिंग द क्वाड्रेटिक ग्राफ्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू फाइंड आउट द रूट्स। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आपके होते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, द एक्स इंटरसेप्ट्स। उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वाई इंटरसेप्ट, और सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि नेचर पता करना बहुत जरूरी है कि क्या वो ग्राफ जो है वो सैड फेस बनाने लगा है या वो ग्राफ जो है वो हैप्पी फेस बनाने लगा है। ये बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें हो गई, इसको जीरो लेवल पर, 0 1 2, एंड देन मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ। Turning point of the graph, also known as the stationary point, also known as the maximum और the minimum point of that graph। ये तीनों नाम है इसके। ये कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई के टर्म्स में। ये जहां से ग्राफ घूम के वापस ऊपर जा रहा हो या वापस घूम के नीचे आ रहा हो, सो दिस वेरी कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट। और इसके अलावा आखिरी चीज क्या लेते हैं जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ दैट ग्राफ। ये चार चीजें हम निकालेंगे, हम इजीली वी कैन स्केच द ग्राफ। So step number 1, to calculate, to find out the roots of that graph, what we have to do is, that is simple. You simply have to do the middle term breaking part. आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हमें असल में x की वो दो वैल्यूज चाहिए। ये जो दो वैल्यूज है ना, ये रूट्स होते हैं या ये x इंटरसेप्ट। तो मैं इस इक्वेशन की सबसे पहले करता हूँ x square minus 5x plus 6 equals to 0. I'll do this. Then I'll do the middle term breaking part. Steps के जो मेरे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो -3 into -2 आ रहे हैं, जिससे मेरे पास -5 बनेगा। तो मेरा बन गया जी x square minus 3x minus 2x plus 6, x common, x minus 3 minus 2 common, x minus 3. So the two brackets are x minus 3 and x minus 2 equals to 0. So the two values are x is equal to 2 and x is equal to 3. I assume all of you are clear with this. So x is equal to 2, let's plot it over here, and x is equal to 3, let's plot it over here. Let's keep it a bit for easier.
अंडरस्टैंड। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट इज क्लियर, ये आपका सी होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो सी होगा आपका, जो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज योर वाई इंटरसेप्ट। सबसे आसान देख के पता चल जाएगा। तो यानी कि आपका ये जो 6 है, ये आपका वाई एक्सिस पे जो है वो आपका वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी कि आपका ग्राफ यहाँ से कट करके। अब ये ग्राफ की नेचर क्या है इसकी, ये सबसे पहले देखनी है आप। देखिए ये सैड फेस है या पी फेस, तो उसको फाइंड आउट करने का आसान तरीका होता है, इफ ए, यानी कि ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर आपको नेगेटिव साइन नहीं नजर आ रहा, पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो आपका बनता है हैप्पी फेस लाइक दिस, विच इज कॉल्ड द मिनिमम पॉइंट। बट इफ ए इज लेस देन जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, नेगेटिव आना चाहिए, तो देन इन दैट केस आपका बनता है सैड फेस विच हैज अ मैक्सिमम। सो इन दिस केस हमारी ये इक्वेशन है, तो हमारा बनेगा हैप्पी फेस। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो मेरे दिमाग में उसका एक रफ सा स्केच बन गया है कि मेरा ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, इट कट्स द एक्स एट दिस पॉइंट, टर्न्स बैक, cuts the x axis at this point again and then go back upward. अब जो दो चीजें रह गई वो रह गई मेरा दिस मिनिमम पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिनिमम पॉइंट, दिस पार्ट, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज ऑलवेज इन बिटवीन द, which always passes from the middle of the x intercepts। ठीक है, तो अब मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसकी x और इसकी y वैल्यू, द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग। इसके दो तरीके होते हैं। इसका पहला तरीका होता है कि आप सिंपली क्या करें, आप 2 और 3, यानी कि जो आपके रूट्स हैं वट एवर दे आर, चाहे 2 और 3 हो, चाहे नेगेटिव वैल्यू है, आप उनका मिड पॉइंट लें। तो मिड पॉइंट लेने का तरीका होता है एड देम एंड डिवाइड बाय 2। तो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 इज 2.5, hence this is the x coordinate over here is 2.5। तो मुझे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी इनको हाफ करने से, ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 2.5। नाउ टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, स्टेप्स आर सिंपल। x की वैल्यू आ गई है, just simply put the value of x in your equation of the curve। Put the value of x in the equation of the curve। तो ये मैं 2.5 को I'll put it in x square minus 5x plus 6, 2.5 squared minus 5 times 2.5 plus 6, and when I'll solve this equation, the answer for y will be equal to negative 0.25. You may cross check it. So I'll write down simply negative 0.25 in the place of y, and now I've achieved the turning point, as I found the turning point as well। और जो equation of the line of symmetry होती है, that is always x is equal to the middle of the roots, which was 2.5। x is equal to 2.5 is the equation of the line of symmetry in this case। तो you're done with the sketch of your graph। यहाँ से आपने देखना है तो आपका y इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव 0.25। ये आपके इस पूरे ग्राफ की लीस्ट वैल्यू है। अगर आपका सवाल आता है कि hence state the least value of your graph, your minimum value, that is negative 0.25। The other way to find out the turning point is to convert your quadratic equation एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 को आप कन्वर्ट करें इनटू दिस फॉर्म, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी, जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। वंस यू आर डन विद द फॉर टू नो हाउ टू डू दिस, मैंने पिछली वीडियोस रिकॉर्ड की, मैं उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई कि आपका जो टर्निंग पॉइंट होगा दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट विल बी ए कॉमा बी। बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो मैंने यहाँ से नेगेटिव हटा दिया, और अगर यहाँ नेगेटिव ना होता प्लस होता तो फिर मैं यहाँ माइनस लगा देता। ठीक है, जस्ट फॉर द क्लियरेंस, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपका जी आ गया ए कॉमा बी, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट। बी इज द लीस्ट वैल्यू। अगर आपको एग्जामिनर कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन चेंज करवा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर वाला नंबर होता है दैट इज द लीस्ट और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ। मैक्सिमम तब जब यहाँ नेगेटिव हो, और लीस्ट तब जब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है, तो व्हेन यू